Good morning, my dear students. As we were discussing about the classification and its system, now comes the topic 3.3 on page number 36. It is about history of classification systems. First of all, the earliest known system of classification of organisms that comes into the world and known by the scientist or philosopher known as Aristotle, and he said all living organisms are grouped either into plantae or animalia. Either they are called as plants or animals. He has divided them into two major groups. Then come Abu Usman Umar al-Jahiz, who described about 350 species of animals, and particularly he wrote about the life of ants. Then comes Ibn Rushd. Ibn Rushd said he also write about the animals, translated the Aristotle's book. And this is the table given about different major scientists. Then comes Carl Linnaeus. A blue box is given, you have to read it thoroughly. Carl Linnaeus divided the nature into three kingdoms, and he said one is the mineral, the other is the vegetable, and then animal. Linnaeus, what did he use? He used to rank these in the classification system. He divided the 5 major ranks, and first one was called as class, then comes order, genus, species, and the last one he called variety. Otherwise, जो कल हमने classification system में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, सबसे lowest rank जो taxa था वो क्या था, species था. लेकिन Carl Linnaeus ने सबसे lowest rank कौन सा रखा, variety. Fine. These were the history about the classification system. The earliest known हमारा classification system था, that was called as two kingdom classification system, जो कि oldest system है, ठीक है. According to that system, only two kingdoms persist, that is plantae or animalia. Plantae में वो organisms होंगे that can prepare their own food from simple inorganic materials, and you better know that कि only plants can prepare their own food. We as animals depend on those plants. So plants were called as autotrophs and animals were called as heterotrophs, who depend on other for their food. But वो कहते हैं at the end there were some discrepancies with this classification system. Some plants, some unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics. So how would we divide them into plantae or animalia? हम कौन से system में रखते हैं? तो इस issue को raise किया गया, और उसके बाद जो हमारा second classification system आया, that was called as three kingdom classification system, and it was proposed by Ernst Haeckel. It was proposed by Ernst Haeckel. उसने ऑब्जेक्शन को क्लियर किया और उसने कहा देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड किंगडम नॉन एज प्रोटिस्टा, ताकि वो इन यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकें या उनकी रैंकिंग कर सकें. बट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें थी और भी मज़ीद ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई जो कि मतलब प्लांट से रिजेंबल करते हैं बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स. तो फिर कैसे हम उनको किस तरह किस रैंकिंग या ग्रुप में हम इसे डिवाइड करें. देन कम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि अब हमारा रिसेंटली नोन भी है, जिसे हम वर्किंग भी कर रहे हैं. इन 1937 ई चैटन द साइंटिस्ट, जिसने 2 टर्म्स को डिस्क्राइब किया, मैं चैप्टर 1 से आपको एक्सप्लेन करती आ रही हूँ. दैट दोज टर्म्स वर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. Pro means that are not true, false organisms. Eukaryotic, those organisms having true nucleus. Prokaryotes में बैक्टीरियाज आ जा सकते हैं, और यूकैरियोट में हमारे एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आते हैं. रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था जिससे फर्दर इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस को एक्सप्लेन किया. एंड दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, 2 मेजर थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर. पहली चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने इसकी डिवीजन की, पहली चीज़ थी या उनका लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया जाए कि वो प्रोकैरियोट है. अगर प्रोकैरियोट है तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है. देन कम्स प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का क्या सोर्स है उनका, आया फोटोसिंथेसिस है, इसका मतलब प्लांट है. एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन है, एनिमल्स हैं. कौन से हैं, ठीक है. 1988 में मार्गलस एंड शिवार्स 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्दर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रन किया. एंड दे सेड देयर आर 5 किंगडम्स टोटल, जो कि मेजरली हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन, एंड वी हैव हाउ मेनी किंगडम्स, 5 किंगडम. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड एज किंगडम मोनेरा. व्हाट इज़ इट, किंगडम मोनेरा. इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फॉल्स होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. दे आर यूनिसेलुलर हैविंग सिंगल सेल, ठीक है. चेन्स, क्लस्टर, कॉलोनीज हो सकती हैं लेकिन सिंगल सेल हैं, ठीक है.
प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, ये आपको बता दिया है. मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स. ठीक है, कोई जो इस तरह था कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है. विद इन दिस देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. पर्टिकुलरली इनके पास बैक्टीरिया होता है या सियानोबैक्टीरिया कहलाता है. किंगडम मोनेरा कौन से थे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, एंड एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया. देन कम किंगडम प्रोटिस्टा. First of all, these are eukaryotic unicellular. What are these? Eukaryotic, unicellular and multicellular organism. इसके पास eukaryotic होंगे, unicellular भी हैं और कुछ multicellular, मतलब जिनके पास multiple cells हैं. मेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट में सबसे पहला आ जाता है एलजे. एलजे में क्या है जी? यूनिसेलुलर होते हैं, क्लोनियल होते हैं, दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल. सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेल एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. Then comes protozoans. They resemble animals and whose cells lack chlorophyll. Some protists are fungi-like. Then comes kingdom fungi. It includes eukaryotic, multicellular heterotrophs. कौन से हैं जी? ये यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टीसेलुलर हैं और हेट्रोट्रॉफ्स हैं. एब्जॉर्प्टिव इनका न्यूट्रिशनल मोड है. कौन से एब्जॉर्प्टिव? फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स. क्या एग्जाम्पल है जी इसकी? मशरूम. Most fungi are decomposers. They live on organic material, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules. Similarly comes the kingdom Plantae. The fourth one are the kingdom Plantae. Eukaryotic, multicellular autotrophs. They are autotrophs. Autotrophs in nutrition mode, making their own food by photosynthesis. Then comes kingdom Animalia. It includes eukaryotic, multicellular consumers. Eukaryotic है, multicellular, लेकिन क्या है? Consumers हैं, heterotrophs हैं, ingesting the food and digesting it within specialized cavity. Biologists believe that the kingdom Protista evolved from Monera and then it gave rise to fungi, Plantae and Animalia. This is the classification system, 5 kingdom classification system. इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, write down in detail, you explain in detail the 5 kingdom classification system. And here is the table drawn, distinguishing characteristics of the 5 हैं. इधर से भी आप इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन कम्स द टॉपिक वायरस. वायरस एक टर्म हम यूज़ करते हैं जो कि आजकल हमारे पास पेंडेमिक भी कंडीशन आई है कोविड-19 की, एंड वी से इट इज़ अ वायरस. व्हाट इज़ वायरस और व्हाट आर वायरसेस? एक्चुअली वायरस इस पे जो साइंटिस्ट अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं और समहाउ उन्होंने इसे डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. एंड जैसे वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब समहाउ दे एक्ट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड समहाउ दे एक्ट एज नॉन लिविंग. अगर नॉन लिविंग की बात करते हैं तो वाई दे आर कंसिडर्ड ए नॉन लिविंग? बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइन नेचर. दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर. दे अगर उनका हम स्ट्रक्चर देखें, दे फॉर्म क्रिस्टल्स. अगर कोई चीज़ क्रिस्टल फॉर्म है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉन लिविंग. ए सेलुलर, दे डोंट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑल दीज थिंग्स शो दे आर नॉन लिविंग. बट ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो पोजेस द DNA. DNA, okay, fine. When anybody has having DNA, it means it's a living thing. So viruses contain either RNA or DNA, normally encased in a protein coat, and they reproduce only in living cells. What happens कि viruses वैसे non-living है. When it enters any living body, when it enters into any living body, they reproduce. लिविंग बॉडी में जाके उन्हें ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, दे रिप्रोड्यूस, एंड दैट रिप्रोडक्शन राइज देम टू बी एज ए लिविंग, ये कंसीडर देम टू बी एज ए लिविंग सेल्स वेयर दे कॉज नंबर ऑफ डिजीजेज. इसी तरह इसके अंदर 2 तरह के और भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हमारे पास है, प्रायोन्स एंड विरियोड्स. प्रायोन्स कौन से होते हैं? दैट आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली. विरियोड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर RNA. Both these particles are considered as infectious diseases in certain plants. Fine. Now, what you have to do? You have to do the relevant questions on your notebooks as given in the December plan. Thank you, students. Hope you understand.